हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 2 11th साइंस मैथ्स चैप्टर 1 एंड सेट थियोरी और सेट का आपका लेक्चर नंबर 2. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट व्हाट इज अ सेट, हाउ टू एक्सप्रेस द सेट, and there are two different ways of expressing the set. One thing is the roster form or the listing form, and second is the property method. By the property method or by set builder form you can express the set, and we have seen the first three questions from exercise 1.1. Now we are going to see the remaining question of exercise 1.1, and again we are having the same thing. Either you have to express the set into set builder form or into the roster form. So here the question number 4. Write the following sets in the set builder form. आपको set builder form में ये जो sets आपको दिए गए हैं उसको बताना है. Look at here. The first set is given as 3, 6, 9 and 12. You can easily observe that these are nothing but just they are the multiples of 3. ये सारे 3 के multiples है और ये जो 3 के multiple है अगर इसको हम बताना है so we can express this 3, 6, 9, 12 as multiples of 3, that is the 3x. But 3x तो बहुत सारे हो सकते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18. But here we are given फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अप टू 12. मतलब क्योंकि जो x की वैल्यू होगी वो होगी x मस्ट बी लेस और इक्वल 4 एंड x मस्ट बी एन नेचुरल नंबर. As we have discussed in the last lecture, there are different types of set n, z, q, r. So here it is a natural number. All they are the positive integers. So natural number and x is less or equal 4. तो x की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 या 4 ऐसा हो सकता है. और x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3. अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9, और अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो वी आर गेटिंग द 12. सो वी कैन एक्सप्रेस दिस एज अ सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में उसको बताना है तो आप क्या करेंगे, कोई ऐसा नोटेशन पकड़ेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट. ये जो 3x है what it shows the characteristic of those elements, और इस तरह से आपको उसको एक्सप्रेस करना है. अगेन 2, 4, 8, 16, 32. This is the another question. 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 and 32. You tempted to write maybe these are even numbers, but actually it is wrong. These are not even number. If it is a even number, then we have 2, 4, 6, 8, 10 like this. But यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 2, it's a 2 raised to 1. ये जो फॉर्म लिखता है 2 raised to 1 लिखता है. ये जो 4 है वहाँ पे 2 raised to 2. ये 8 है वहाँ पे 2 raised to 3. ये 2 raised to 4. ये 2 raised to 5. इस तरह से लिख सकते हैं. So they are not even numbers, but they are the powers of 2. They are the powers of 2, और जो पावर है 2 के, so we can write 2 raised to n, और n की जो वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4 and 5 टर्म्स आते हैं. So n must be less or equal 5. Again n belongs to, and as it is a positive integers, so this way we are getting 2 raised to n. It's a second form of the set. Third, 5, 25, 125, 625. You are given again the same thing is that it's a power of 5. 5 is to 2, 5 is to 3, 5 is to 4. So it follows the characteristic of the powers of 5. So this we can express by 5 raised to n, but not infinite, but here we have finite number of elements. There are 1, 5 is to 1, 5 is to 2, 5 is to 3 and 5 is to 4. So the maximum value of n is 4. So n is less or equal 4 and
n belongs to n. So this way we can write the third form of the set, that is the set builder form. Next one, question number 4. Now you can see here 2, 4, 6, etc. If you want to express the infinite set, that you should take a 3 dot after the element. So it shows the infinite set. And 2, 4, 6, etc. So these are even numbers, and even number, set of even numbers can be expressed by 2x or 2n, whatever you like to write. But as here n is less or equal to 4, n is less or equal to 5, because they are the finite set. Number of elements are finite. Here the number of elements are infinite, and therefore we have to write n belongs to n. यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट तक जाएगी. अगर n इक्वल टू 1 लेंगे 2 into 1 2 मिलेगा. अगर n 2 लेते तो 2 into 2 4. अगर n 3 लेते तो 2 into 3 6, 4, etc. you go. So we will write the set as 2n, n belongs to n. Another question. Again you have to express this set in the set builder form. और सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको उसको एक्सप्रेस करना है, ये जो आपको दिए हैं नंबर्स 1, 4, 9, कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो रही है? ये जो नंबर्स है वो नंबर्स है परफेक्ट स्क्वायर. और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 up to 100 means it is a 10 square. So these are the numbers. It is a square of some numbers, x square, and x must be less or equal 10. 10 तक जाना है आपको, and x belongs to n. So 1, 4, 9 up to 100, और उसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो आपको मिलेगा x square. X must be less or equal 9. X belongs to n. So this way you can express the different set into set builder form. अब उससे उल्टी प्रोसेस है. You should make a list of the elements. You are given some set builder form of the set, and you are going to express, or you are going to make a list of those numbers. First question: x is an odd natural number. x आपको दिया गया है odd natural number. तो जैसा कि हम जानते हैं 1, 3, 5, 7. यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं बताई है कि कहां तक आपको जाना है. सो इट्स अगेन infinite set. There are not a finite number of elements. 1, 3, 5, 7. All these are odd numbers. So we have to write like this. Similarly, B. यहाँ पे आपको लेना है x is an integer. कौन से इंटीजर्स लेने हैं आपको? बिटवीन -1/2 to 9/2. x की जो वैल्यू है वो -1/2 से 9/2 के बीच में होनी चाहिए. -1/2 इट्स नथिंग बट जस्ट -0.5, और 9/2 जो है वो है 4.5. So these integers must be lying between -0.5 and 4.5. So the numbers are, so the integers are lying between these two numbers. First integer is 0. फिर 4.5 के पहले के इंटीजर्स आपको लिखने हैं 1, 2, 3 and 4. These are the 5 numbers which are integer as well as lying between these two numbers. Similarly, x is an integer और जिसका स्क्वायर जो है x square must be less or equal to 4. यहाँ पे अगर आपको मैं समझाऊं तो x square जो है उसका स्क्वायर 4 और उससे कम है. इसका मतलब आपको ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिसका स्क्वायर 4 से कम है. तो लेट्स स्टार्ट विथ 1. अगर हम 1 लेंगे x, तो 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, एंड 1 मस्ट बी लेस और इक्वल टू 4. सो यू हैव टू राइट फर्स्ट 1. उसके बाद अगर हम x2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर
लेस और उसके साथ साथ आपको इक्वल भी दिया गया है, तो 2 का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू 4 होता है, एंड दैटफॉर वी कैन ऑल्सो पुट 2 एट दैट, बट साथ साथ में इट्स अ इंटीजर, so integer may be positive, integer may be negative, also included 0, so 0 square, 0 का जो स्क्वायर है वो आएगा 0, अगर 0 लेते हैं यहाँ पे तो 0 square it's a 0 which is also less than 4, so which also satisfies the characteristic of given number, and therefore 0 is also included at that. As it is integer, negative numbers also be possible. यहाँ पे अगर हम -1 लें तो -1 का स्क्वायर होगा अगेन 1, एंड 1 must be less or equal 4, so you can also write -1, and similarly if you are giving -2 तो -2 का स्क्वायर भी होता है 4, so -2, -1, 0, 1 and 2, these are the numbers which are integer as well as the satisfied the given characteristic x square must be less or equal 4. तो ये जो सारे नंबर्स है उसका स्क्वायर लेस देन और मे बी इक्वल, and that's why we have to write the list of those numbers like this. One more question. Loyal, word loyal is given. मैंने ये लास्ट में आपको एक बेटर वाला समझाया था, तो यहाँ पे वर्ड है लॉयल, एंड इन द मेथड ऑफ लिस्टिंग फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म व्हेन यू राइट द एलिमेंट वन टाइम यू कैनॉट बी रिपीटेड. आपको जो वर्ड है या लेटर है या कोई नंबर है उसको रिपीट नहीं करना है जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तब, और उसके बीच में आपको कॉमा रखना है. और once again I am going to remind you the characteristic of the set builder form or listing form. लिस्टिंग फॉर्म में क्या करते हैं, पहले आप उसको कर्ली ब्रैकेट बनाए थे, कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद आप उसमें उसके एलिमेंट्स या मेंबर लिखते हैं, और जब भी मेंबर लिखते हैं तब हम जो रिपीटेड मेंबर होता है उसको फिर से नहीं लिखते, LOYA, और फिर बाद में अगेन L है, लेकिन L ऑलरेडी है तो वो L फिर से नहीं लिखेंगे और लिखेंगे LOY and A. So this is the listing form of the given set. और एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मैच द कॉलम. आपको कॉलम जो है उसको मैच करना है, कॉलम A एंड कॉलम B. क्वेश्चन नंबर 6. You are given in question 6. You are given at the one side. The sets are 1, 2, 3, 6. The sets are 1, 2, 3, 6. Second set is given as 2 and 3. Third set is given as the set of letters MATHE and I, C and S. And the other one 1, 3, 5, 7 and 9. On the other side, the other sets are given, but these are given in set builder form. Here 1, 2, 3 and 4, and here it is A, B, C and D. Is X such that X is prime number. X is prime number and divisor of 6. The other set, X is the
x is odd natural number. X is odd natural number less than 10. Third, x is the natural number and divisor of 6. X is natural number and divisor of 6. And fourth set, x is the letter of the word. X is letter of word mathematics. ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है. लुक एट हियर, वन सिंपल थिंग, जो जैसे मैंने लास्ट में लिखा है मैथमेटिक्स, सिर्फ एक ही वर्ड वाला, एक ही लेटर, एक ही सेट है. तो लेटर वाला जो सेट है वो है MATHEICS, so you can just directly simplify this one. तो थर्ड जो है 1 2 3, थर्ड कॉलम मैच विद इट. सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज है, वो है ऑड नेचुरल नंबर, और यहाँ पे जो सेट दिए है 1 3 5 7 एंड 9, दिस इज द ओनली सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर. सो ये भी इजीली आप लिख सकते हैं 4 इज विद डी. अब यहाँ पे ये दोनों वर्ड सेम है, डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइडर ऑफ 6, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन है प्राइम, एंड हियर इट इज अ नेचुरल नंबर. सो डिवाइजर ऑफ 6 में क्या आता है, 1 2 3 एंड 6, these are the divisor of 6. Okay, 6 1s are 6 and 2 3s are 6. So they are the divisor of 6. But here we require prime. So out of which 2 and 3 are the prime. So second is matched with the A, and second match with the, and फर्स्ट जो है ऑब्वियसली मैच विद द सी. सो फर्स्ट का जो आंसर है वो सी रहेगा. तो इस तरह से ये आपका मैथ्स का कॉलम का जो क्वेश्चन था यहाँ पे खत्म होता है, और आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो यहाँ पे खत्म होती है. तो ये एक्सरसाइज में हमने जो देखा है वो है ओनली सिंपल डेफिनेशन ऑफ द सेट, और उसका जो एक्सप्रेशन है सेट को आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस. अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं. वैसे यहाँ पे आपको 7 अलग अलग एक्सरसाइज सीखनी है. 1.1 से लेकर 1.6 तक के क्वेश्चंस है, और 1.6 के बाद एक्सरसाइज 1 भी आपको करनी है. यहाँ पे 1.1 के अंदर सिर्फ सेट का डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन है. अब उसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है वो है टाइप्स ऑफ द सेट. अलग अलग टाइप के आपको सेट सीखने हैं. यहाँ पे आज मैं जो डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 1.2 रिलेटेड जो सेट है उसका हम डिस्कशन करेंगे, और उसमें 3 इंपॉर्टेंट सेट की डेफिनेशन आपको सीखनी है. फर्स्ट डेफिनेशन जो है टाइप ऑफ सेट्स. नंबर 1 वो है एम्प्टी सेट. उसका दूसरा नाम है नल सेट. और कभी कभी आप बाहर की कोई अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और से कोई दूसरी बुक पढ़ते हो तो एक उसका दूसरा नाम भी है, वो है वॉइड सेट. ऐसे 3 अलग अलग नाम से वो नाम जाना जाता है, empty set, null set and void set. Name itself a definition. उसकी जो डेफिनेशन है उसका नाम में ही छुपी हुई है, empty set. एक हम पहले सिंपल एग्जांपल लेंगे. सपोज ए है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सच अ एक्स वेयर x² + 1 = 0
एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कौन सा फॉर्म है सेट का? सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको उसका लिस्टिंग फॉर्म डिराइव करना है। अगर आपको उसका लिस्टिंग फॉर्म चाहिए, हाउ टू डिराइव द लिस्टिंग फॉर्म ऑफ द सेट, तो सबसे पहले ऐसे एक्स लाने के लिए ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 0, सो एक्स स्क्वायर इक्वल ये होगा -1। द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज अ नेगेटिव। ऐसे कोई नंबर है जो आपने सीखे है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है? तो अब तक की स्टडी में आपके पास ऐसे कोई नंबर नहीं आते थे। आप नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल और रियल, ये सारे नंबर्स आप सीख कर आए। इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे आपको रियल नंबर दिया है एक्स बिलोंग्स टू आर, बट देयर इज नो सच अ रियल नंबर whose स्क्वायर इज नेगेटिव। अगर आप -1 भी करोगे तो -1 का जो स्क्वायर आता है वो 1 आता है। सो देयर इज नो सच अ रियल नंबर whose स्क्वायर इज नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो सेट रहेगा इसके लिस्टिंग फॉर्म में अगर आप उसको एक्सप्रेस करते हो तो दिस कैनॉट बी हैविंग अ एलिमेंट। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये सेट कैसा हो गया? एम्प्टी। आपको इसी साल आपको एक नए नंबर भी सीखने हैं और वो नए नंबर है, फिफ्थ चैप्टर आपका है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पॉसिबल है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर आई स्टैंड फॉर आयोटा एंड आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी। ये रियल है तो इसका ऑपोजिट इमेजिनरी। देयर इज सम इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर whose स्क्वायर इज नेगेटिव। ऐसा नंबर है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ आर दिया गया है। तो ऐसा नंबर, रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। एंड देयरफॉर द लिस्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ द सेट इज एम्प्टी। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब हुआ सेट इज एन एम्प्टी सेट। ओके, सो हियर ए इज अ एम्प्टी सेट और इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल प्रोड्यूस किया। ओके, सो इफ there is no element, if there is no element in the set, then it is called empty. Okay, तो अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो सेट को हम कहेंगे एम्प्टी सेट। ये उसका डेफिनेशन है। ओके, और उसका अलग अलग नाम एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। उसके जो सिंबल्स है, इट इज डिनोटेड बाय आइदर दिस वे एम्प्टी सेट और एक अच्छा सा एक इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन फाइव, जिसको हम पढ़ेंगे फाइव। इट इज ऑल्सो सिंबल स्टैंड फॉर द एम्प्टी सेट। तो ये फाइव है, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, बट डोंट मेक टूगेदर। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये जो सेट और सेट के अंदर एक एलिमेंट हो जाएगा तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। अगर सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसका नाम है सिंगलटन सेट। तो ये जो सेट है वो सिंगलटन एम्प्टी सेट नहीं है, वो सिंगलटन सेट होगा। तो ये या दोनों में से कोई भी एक सिंबल यूज करके आप एम्प्टी सेट को बता सकते हो। सो ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेट हुआ। तो दूसरी डेफिनेशन मैंने साथ साथ में आपको समझाई कि वो है सिंगलटन सेट। If the set has one and only one, सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेट, देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन। अगर सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सर इसमें वन आता है तो ये सिंगलटन, नहीं।
ऐसा जरूर नहीं है कि 1 आना चाहिए। मैं एग्जाम्पल लूंगा, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर में कितने एलिमेंट आएंगे? इवन भी होगा और प्राइम भी है। ऐसा एक ही नंबर है, वो है 2। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। अगर ये 1 है तो मल्टीपल ऑफ ओके, एक एग्जाम्पल, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो वो है मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी कौन सी है? वो है 1। तो अगर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, वो है 0, तो अंदर सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। सो अगर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, देन इट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। तो ये आपकी दूसरी डेफिनेशन हुई। ऐसे ही हम देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ डेफिनेशन, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 जो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट के ऊपर डिपेंड है, वो देखेंगे। डेफिनेशन नंबर 3, वो भी मैंने शायद आपको समझा दिया है सम करते करते। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, जो नंबर्स के सेट है, सपोज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले तो कौन सा आएंगे? 1, 2, 3 टेस्ट। अगर हम इंटीजर्स लेते हैं तो -2, -1, 0, 1, 2 लाइक दिस, ऐसे नंबर्स आते हैं। सो दीज आर एंडलेस और अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें कितने नंबर्स है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। एंड इफ द सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, then it is called a infinite set. So all the set of numbers, even integers 2, 4, 6 up to, वो भी हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था कि इवन इंटीजर्स इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल और एंडलेस। अगर सेट एंडलेस है और उसके अंदर कोई अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है, देन इट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। तो उससे ऑपोजिट, द सेट having finite number of elements. अगर सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, सो देयर इज ओनली 4 एलिमेंट इन द सेट। ये सेट के अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट है, तो वो फाइनाइट हो गए। सो इट इज अ फाइनाइट सेट। The set having finite number of element, then it is called finite set. Otherwise, it is infinite. अगर सेट के अंदर फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो जो सेट होगा वो फाइनाइट सेट है। और जैसे कि सिंगलटन सेट, बोलो सिंगलटन सेट कैसा होगा? ऑब्वियस बात है, सिंगलटन सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो काउंटेबल है, इट इज अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट कैसा होगा? यहाँ पे एक और चीज हम नोट डाउन करेंगे। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट है? सिर्फ एक भी नहीं एलिमेंट है, कोई एलिमेंट एम्प्टी सेट में नहीं है, तो वो भी काउंटेबल हुआ। सेट एम्प्टी है तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इस मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इट्स अ 0, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। सो एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट आर फाइनाइट सेट। ये हम नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज। और ऑल द सेट ऑफ नंबर्स आर इनफाइनाइट सेट्स, ये आपको याद रखना। और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज की सम है 1.2 के, वो हम देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1
1.2 question number 1. Which of the following are null set? The set of odd natural numbers divisible by 2. जैसा कि हम जानते हैं odd natural number जो होते हैं वो है 1, 3, 5, 7 etc. These are the odd numbers. और odd number की characteristic ही वही है कि the numbers which is not divided by 2, that is called odd. अगर नंबर डिवाइडेड बाय 2 है वो इवन नंबर्स है. यहाँ पे आपको ऑड नंबर्स मांगे हैं और वो भी कैसे, जो 2 से डिविजिबल है. तो 1, 3, 5, 7 these are the numbers not divisible by 2. ऐसे कोई नंबर ऑड नंबर्स है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो. मतलब यहाँ पे ऐसे कोई एलिमेंट ये सेट पे आपको मिलने वाले नहीं है. मतलब द सेट बिकम्स अ एम्प्टी और द नल सेट. आपको बताना ये सेट कैसा है. तो ये जो फर्स्ट सेट है वो आपका नल सेट है. दूसरा एग्जांपल वो भी मैंने आपको बताया इवन प्राइम नंबर्स. एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है और प्राइम भी है. सो ये आएगा 2. सो विच इज नॉट अ नल सेट. ये जो सेट होगा वो सिंगलटन सेट होगा, वो नल सेट नहीं होगा. सिमिलरली थर्ड वन, ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 7 है. अगर आप लेस देन 5 नंबर लोगे तो वो आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4. तो 1, 2, 3, 4 विच आर नॉट ग्रेटर देन 7. और अगर आप 7 से ज्यादा नंबर लेते हो 8, 9, 10 समथिंग समथिंग, सो दे आर नॉट लेस देन 5. तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाइड करे ऐसे कोई नंबर्स नहीं है जो लेस देन 5 भी है और ग्रेटर देन 7 भी है. अदरवाइज ग्रेटर देन 7 भी है और लेस देन 5 भी है. ऐसे दोनों में से कोई कैरेक्टरिस्टिक एक साथ में सेटिस्फाइड करे ऐसे कोई नंबर्स नहीं है. सो दिस सेट इज अ एम्प्टी सेट. अगेन इट इज अ नल सेट. एंड नंबर 4, व्हाई इज द पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस. जैसे कि हम ज्योमेट्री में सीखे कि इफ द टू लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर देन सच लाइंस आर पैरेलल. सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम. अगर इसका पॉइंट ये है तो इसका पॉइंट ये होगा. दोनों में से कोई पॉइंट कंबाइन नहीं होगा. दोनों के किसी भी पॉइंट जो है वो सेम नहीं होंगे. सो अगेन दिस इज अ एम्प्टी सेट और नल सेट. सो आउट ऑफ 1, 2, 3 and 4, first one, third one and fourth one are the examples of null set. सेकेंड जो है वो इवन प्राइम नंबर है, वो सिंगलटन सेट है. बाकी के जो सेट है वो नल सेट है. इसी तरह से आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट जो है वो आपको बताना है. वंस अगेन द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर. आपको पता है जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, April up to December. There are only 12 months in the year. और 12 मंथ है तो वो जो सेट बनेगा वो आपका मंथ का वो फाइनाइट बनेगा बिकॉज देर आर ओनली 12 एलिमेंट्स इन द सेट. इट इज काउंटेबल, इट इज फाइनाइट, सो इट इज अ फाइनाइट सेट. सो फर्स्ट सेट है वो फाइनाइट. 1, 2, 3 बाद में डैश करके दिखाया. सो ऑब्वियस बात है ये जो सेट हो जाएगा वो इनफाइनाइट सेट होगा. सिमिलरली थर्ड वन 1 to 100. हाँ भले 100,000 एलिमेंट हो लेकिन 1000 एलिमेंट है वो भी काउंटेबल है. मतलब कि वो फाइनाइट है. यहाँ पे 1 to 100 एलिमेंट है, भले 100 एलिमेंट है बट इट इज काउंटेबल, इट इज अ फाइनाइट. सो दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट. ये जो सेट बनेगा वो फाइनाइट सेट होगा. The set of positive integers greater than 100. 100 से बड़े जो इंटीजर्स है वो है 101, 102, 103 डैश. बहुत सारे इंटीजर्स ऐसे जो 100 से ग्रेटर देन है और वो अनकाउंटेबल है. इसीलिए ये जो सेट आपका बनेगा वो बनेगा इनफाइनाइट सेट. द क्वेश्चन 4 इज द इनफाइनाइट सेट. 3 finite, 2 infinite, and first is also finite. And last question, the set of all prime numbers less than 100, less than 99. 99 से जो छोटे हैं ऐसे प्राइम नंबर. सो ऑब्वियस बात है
कि 99 से छोटे है तो इट मस्ट बी काउंटेबल। आप शुरू करेंगे लिखना 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे आपको कहां तक जाना है? 99 से पहले का जो नंबर है वो लिखना है। तो दैट मीन्स इट इज अ काउंटेबल। 99 से छोटे है इसलिए काउंटेबल हो गए तो वो जो सेट आएगा वो फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर आज यहाँ पे खत्म होता है। 1.2 के हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट टाइम अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेट करेंगे और नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय।